ہمارے ساتھ موجود ہے ماروی ایوان جو کہ ان کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ ماروی، یہ بتائیے گا کہ اتنے ہوشربا قسم کے یہ کیسز ہیں، اتنے ہوشربا نمبرز ہیں کہ جن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ حکومت کہاں پہ کھڑی ہے؟ حکومتی ایک بے بسی، بے حسی کہیں کہ کوئی کسی قسم کی ان کے حوالے سے کارروائی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اتنے اہم ٹاپک پہ آپ لوگوں نے بات چیت آج رکھی ہے، کیونکہ اسی طرح ہم ایک بات کرنے کا سلسلہ ان بہت اہم ٹاپکس پہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک حکومت کی بات کی جائے تو قوانین ان تمام جرائم کے لیے موجود ہیں، لیکن وہ صرف فائلوں کے اندر بند ہیں۔ جس طرح سے وہ کمیونٹیز تک، لوکل لوگوں تک پہنچنے چاہیے، وہ پہنچ نہیں رہے ہیں۔ تو اگر قانون موجود ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ہمارے کام آ سکتا ہے؟ نہ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں، اور نہ ہی وہ قانون وہ جو ایک مناسب سا ڈر پیدا کرتا ہے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، نہ وہ کام ہو پا رہا ہے۔ جہاں تک بات کی جائے کہ قوانین کے حوالے سے جو ان کے اندر بہتر طریقے سے ہر صوبے نے بہت اچھے قانون پاس کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی ایسا جرم آپ نہیں مجھے بتا سکتے ہیں، یا میں نہیں آپ کو بتا سکتی ہوں، جس کے اوپر قانون اب تک نہ آیا ہو۔ ابھی ریسنٹ بھی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں جو بھی بتائے گئے ہیں یہاں پر نمبرز، آئی ایم ٹیلنگ یو، ان سے زیادہ جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہیں وہ کیسز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس، جو گھروں کے اندر تشدد ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، بچیاں جو برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے جو رپورٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ نمبر ہے جو کہ گھروں کے اندر عورتیں برداشت کر رہی ہیں، لیکن وہ اس کو رپورٹ کرنے کے لیے نکلتی نہیں ہیں۔ جب ہم یہاں پہ جنسی زیادتیوں کی بات کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہت سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور وہ جب بچے بہت سارے کیسز میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جب بچے کی جان چلی جاتی ہے تب وہ کیس سامنے آتا ہے، ورنہ جتنا ہو سکتا ہے فیملیز اس کو چھپانے چھپانے کی کی یا کوشش دبانے کی کرتی کوشش ہیں۔ کرتی ہیں۔ تو اس طرح بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب خواتین کے ساتھ اس طرح کے جنسی زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں تو معاشرہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ اب تک ہمارے معاشرے کو بہتر نہ کوالٹی تعلیم مل سکی ہے جو کہ ملنی چاہیے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اور جہاں پہ خصوصاً ہم ایک جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں کہ جی جنسی طور پہ خواتین کے حوالے سے ایک جو معاشرہ ان کو کمزور سمجھتا ہے، ایک نفرت کا اظہار کرتا ہے، اپنے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر چلنے نہیں دیتا، وہ جو بیسک رائٹس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہر انسان کے لیے دیے ہوئے ہیں، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، یا خواجہ سرا ہو، ان کو اس طرح سے تعلیم کے حق سے محروم رکھنا، ان کے لائف ٹو ایک رائٹ ٹو لائف ہے اس کو تھریٹ کرنا، ان کے رائٹ ٹو اوپینین کا تو کوئی ہمیں نشان نظر نہیں آتا ہے۔ ہماری جو جدوجہد ہے خواتین اور بچیوں کے حقوق کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ ان کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو اس طرح نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ان کو رائٹ ٹو اوپینین ہے اپنا، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے، آپ یا میں نہیں دیتے، ان کو وہ ایکسرسائز کرنا ہے۔ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اب بھی ہمیں وہ گھرانے نظر آتے ہیں جو بچیوں کو پڑھانے کے بجائے ان کے جہیز کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں تمام چیزیں، اور وہ تو بچیوں کو شروع سے یہ ٹھیک ذہن میں ڈال ماروی، دیتے یہ ہیں سب کہ آپ مسائل مہمان ہیں یہ اس گھر سب میں، مسائل یا ہیں۔ آپ بوجھ ہیں۔ جی ماروی، سوری ٹو انٹرپٹ، یہ سب مسائل ہیں، ان کو ہم نے بھی ہائی لائٹ کیا، آپ بھی کر رہی ہیں، اینڈ تھینک یو فار دیٹ۔ لیکن یہ اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ یہ مسائل ہیں تو صحیح، یہ بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑھتے اس لیے چلے جا رہے ہیں، ایک تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب ایڈوانسمنٹ آتی ہے سوسائٹی کے اندر، جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ان ہے ہمارے بیچ میں، اور اب جو کیسز ہمارے پاس ریسیو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی گیجٹ یا سوشل میڈیا کی انوالومنٹ ضرور رہتی ہے، یعنی کہ وہ بدنام کرنے کا خطرہ، اور خواتین کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جی آپ کی انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی ہے، اس کو ہم آؤٹ کر دیں گے، آپ ہماری
हमारी मर्जी की मुताबिक चलिए या बात कीजिए। तो इस तरह हमें ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो एडवांसमेंट है वो हमारी तरक्की के बजाय हमें पस्ती की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर हमें इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा, वो अवेयरनेस नहीं दी जा रही। और जहाँ मैं जेंडर सेंसिटिविटी की स्पेसिफिकली बात करूंगी कि जिस माशरे में हम बहुत ज़्यादा आगे जाते चले जा रहे हैं, अब भी यहाँ पर ख़वातीन की तालीम के मसले हैं, अब भी यहाँ पर आउट ऑफ द स्कूल गर्ल्स का रेशो बहुत ज़्यादा है। ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे जाती जा रही है, लेकिन हम अब तक इन जो बेसिक मसाइल है इनको नहीं फेस कर पा रहे हैं। ये मसाइल बढ़ने का और अब तक हल ना होने का बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि लोगों को पता ही नहीं है अब तक कवानीन के बारे में। और अगर हुकूमत के एफर्ट्स की बात की जाए तो वो लोगों के अंदर आगाही पैदा करने के हवाले से इतने हमें तेज नजर नहीं आते हैं। और यहाँ पर जब हम ये देख रहे हैं कि एक घराने के अंदर तालीम नहीं है, उसको कवानीन का पता नहीं है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, लिटरेसी रेट इतना कम है, तो वो कैसे जानेंगे कि कवानीन क्या है और वो उसके हवाले से कैसे उसका ऊपर अमल दरामद करेंगे। अच्छा और मारवी, जिस अगर तरह आप ओल्ड बात कर रही हैं, आपकी स्कूल बात ऑफ से मुझे थॉट्स ये की बात की जाए, मारवी, जिस तरह आप बात कर रही हैं, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि सोशल मीडिया का जो ज़्यादा इस्तेमाल है उसकी वजह से भी ये जराइम बढ़ रहे हैं। इज़न्ट इट के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा जी पॉजिटिविटी बिल्कुल भी जहाँ पे बिल्कुल। आती है, लेकिन उसी के इस्तेमाल से ही ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह के हथकंडे भी हमें यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। यही कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, असल में सही नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में आपको नहीं होती है, आपको एक चीज़ इस्तेमाल करनी नहीं आती है, आपके पास बेहतर तालीम मौजूद नहीं है, वो एक शऊर मौजूद नहीं है, वो एक जेंडर सेंसिटिविटी मौजूद नहीं है, फिर तो ये एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो कि बहुत ब्लैकमेलिंग, साइबर हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग और इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक। अच्छा मारवी, ये बताएं, आपने अभी पिछले क्वेश्चन के जवाब में ये कहा कि अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ, ख़वातीन को ख़ास तौर पे पता ही नहीं है कि कवानीन क्या है। तो हम ये सेगमेंट कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहनें इस वक्त हमें देख रही हैं, आई एम श्योर कि ज़्यादातर ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, तो आप बताती चलें, 2-4 कवानीन का ही फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ भी उनको बताएं, गाइड करें कि फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता अगर कोई घरेलू तशद्दुद का शिकार खातून इस वक्त देख रही है, उसको क्या करना चाहिए, कानून उसको क्या रिलीफ फराहम करता है, राइट 2-3 एग्जाम्पल्स के बिल्कुल। साथ। बिल्कुल हमारे मुल्क पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू तशद्दुद का कानून मौजूद है। जो भी खवातीन अभी हमें घर में बैठे हुए सुन रही हैं, अगर आपके स्पाउस या आपके घर के किसी भी अफराद से आपको मारपीट की जाती है, आपको बुरे भले अल्फाज कहे जाते हैं, आपको आपके बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते, आपको शादी के बाद वो प्रॉपर जो खर्चा होता है वो नहीं दिया जाता, आपके बच्चों की प्रॉपर देखभाल नहीं की जाती, आपको तलाक की धमकियां दी जाती हैं, इस तरह के कोई भी मसाइल आपके साथ हैं, आप कानून से जिस भी सूबे से आप ताल्लुक रखते हैं, आप कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा पुलिस की अगर बात की जाए तो 15 ऐसा नंबर है जो पूरे पाकिस्तान में आप उसको डायल करके पुलिस की मदद ले सकते हैं। अच्छा, घरेलू तशद्दुद की खवातीन जो सर्वाइवर्स होती है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपके साथ मारपीट होती है या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो आपने फौरी तौर पर अपने घर के करीबी जो थाना होता है उससे राब्ता करके मेडिकल लेना है अपना, क्योंकि अगर वो मेडिकल आप मिस कर देंगे और जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उसके जो निशानात, उसका जो प्रॉपर जो मेडिकल होता है वो आपके पास नहीं होगा तो आगे आपको मुश्किलात हो सकती हैं अपने इस केस को अदालत में लेकर जाने में। बहुत सारी बहनें घबराती हैं कानून को अपने हक के लिए इस्तेमाल करने से, लेकिन वो इस बात को समझें कि ये कानून उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। कम से कम अगर वो कंप्लेन नहीं भी एकदम कर रही हैं तो वो कम से कम अपने ऊपर तशद्दुद करने वाले को ये बता दें कि मैं इस कानून के बारे में जानती हूँ। वो बात ही आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके अलावा जब हम यहाँ पे उन खवातीन और हमारी बहनों की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट ऑफिसेज में काम करती हैं, जी मारवी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए मारवी के साथ जी। यहाँ पर वर्क प्लेस हरासमेंट का आपके लिए एक्ट मौजूद है। मारवी, आपकी आवाज, मारवी सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी आवाज कट गई थी, आप ऑफिस का बताने लगी थी कि ऑफिशियल हैरेसमेंट वहां से प्लीज स्टार्ट से बताइएगा।
जी, जी। जो भी इस वक़्त हमें ख़वातीन सुन रही हैं जो कि ऑफ़िसेज़ में काम करती हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, वो टीचर हों, वो किसी टीवी पर काम करती हों या वो किसी और ऑर्गनाइज़ेशन में एनजीओ में काम करती हों, कहीं पर भी काम करती हों, आपके लिए कानून मौजूद है वर्क प्लेस हैरेसमेंट का। जी। उसके तहत आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके अंदर कमेटियाँ बनी होनी चाहिए। अगर वो नहीं मौजूद कमेटियाँ तो आप इस कानून के तहत उस कमेटी के बारे में बात कीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उस कमेटी के अंदर एक खातून का होना ज़रूरी है और बाकी जितने भी अफराद हैं, उनके नंबर तमाम काम करने वाले लोगों को पता हों, ताकि अगर उनके साथ अब हैरेसमेंट इस तरह है कि कोई भी चीज़ जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही हो, अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें तो उसमें इस तरह से छूना जो आपको पसंद ना हो, इस तरह कोई आपसे फेवर्स लेना कि आपकी सैलरी बंद कर देंगे या आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगे अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी, तो काम करने की जगह पे जो भी जिस तरह के भी आपको मसाइल हो हरासमेंट के हवाले से, जी। उसके लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी हम सब शहरियों का एक एक राइट टू प्रोटेक्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टेट की जिम्मेदारी है, चाहे वो हरासमेंट हो, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, जिनसी ज्यादतियां हो, किसी के साथ भी हो, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो या कोई बच्चा हो या ख्वाजा सिरा हो। हमारा हक है इस मुल्क के अंदर एक आजाद शहरी, एक सेफ और सिक्योर सेफ्टी के साथ एक शहरी को रहना है। कोई भी हमारे अच्छा मारवी, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल मुझे आपकी राइट को सारी बातें वायलेट नहीं समझ भी कर आ गई और सकता मैं है। उम्मीद करता हूँ कि आवाम को भी समझ आ गई हो, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम पुलिस को अपना सेवियर नहीं समझते। पुलिस में जाने से थोड़ा सा डर लगता है पूरी, अगर सोसाइटी की बात की राइट। जाए। और सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आप प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व हैं, तो ख़वातीन के हवाले से कोई जिनसी तशद्दुद होता है, कोई ज़्यादती होती है, पुलिस उसको किस तरह से एंटरटेन करती है? हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में आप चले जाएं तो वहाँ पे मामलात को लिंगर ऑन किया जाता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है। इन स्पेसिफिक केसेस को पुलिस सीरियस लेती है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यहाँ पर जेंडर सेंसिटाइजेशन की और लॉज़ की अवेयरनेस की जो थाने लेवल पर कल्चर है, वहाँ पे वाक़ई कमी है। और अगर देखा जाए पूरे पाकिस्तान में तो आपको मर्दों की तादाद ज़्यादा नज़र आती है, जो कि अब बढ़ रही है। अब ख़वातीन फ़ोर्सेस को जॉइन कर रही हैं, जो कि एक बहुत खुश आइन बात है। क्योंकि जब हम आपने देखा होगा कि ये पैट्रियोटिकल माइंडसेट के लोग जब हॉस्पिटल भी जाते हैं तो एक खातून ढूंढते हैं अपनी घर की फीमेल की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अपनी बेटी को जब डॉक्टर बनाना होता है तो थोड़ा रिलेक्टेंट हो जाते हैं, या पढ़ाई करनी होती है या स्कूल भेजना होता है। लेकिन ये खुश आइन बात है कि पुलिस में अब भर्तियां हो रही हैं औरतों की, जो कि हमें जेंडर के हवाले से क्राइम को कंट्रोल करने में बहुत मदद कर सकती हैं। हम अगर सिंध की बात करें या दूसरे सूबों की बात करें तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो ख़वातीन ऑफिसर्स हैं वो जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से हमें इन्वॉल्व नज़र आ रही हैं। उनकी और ज़्यादा ट्रेनिंग्स की बिल्कुल ज़रूरत है। और जो यूनिट्स हैं ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के, वो पाकिस्तान में बहुत सारे सूबों में मौजूद हैं। तो ख़वातीन और बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के इदारों तक आप पहुँचिए। अगर आप डरते रहेंगे तो कभी इदारे हमारे लिए काम नहीं और करेंगे। मारवी बताएंगे हमें इस इदारे डर हैं को कौन कौन पीछे से? रख के आगे बढ़ना है। मारवी ये स्टेट लेवल पे प्लीज बताइएगा, अगर कोई भी खातून किसी किस्म की भी किसी मसले के लिए भी अगर स्टेट लेवल पे जाके किसी इदारे को कांटेक्ट करना चाहती है तो वो इदारे कौन कौन से हैं? क्योंकि बहुत सारी बहनें इस वक्त हमें देख रही होंगी जो यकीनी तौर पे पढ़ी लिखी नहीं भी होंगी, तो उनको आप अगर गाइड कर सकें कि उन इदारों तक कैसे वो रसाई हासिल कर सकती हैं। देखिए बहुत सारे इदारे हैं। एक तो हम ये बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से क्राइम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो साथ में सोशल मीडिया हमें अवेयरनेस देने में भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कंट्रीब्यूट कर स्टेट रहा लेवल है। के इदारों की यानी पूछ रही कि हूँ। जी, जी, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस का पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक़्त हमें पाकिस्तान के हर सूबे से लोग सुन रहे हैं, तो पुलिस का 15 का नंबर आप सब ओके। लोगों के लिए मौजूद है। आप लोग उसको डायल करके हेल्प सीक कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास लीगल एड के हवाले से सोसाइटीज़ मौजूद हैं। हमारे पास वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स मौजूद हैं, जो कि सिंध में उनकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन और हमारा बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा रहा है, जो कि अच्छा हर मारवी, एसएसपी इफ और आई एम नॉट डीआईजी रॉन्ग ऑफिसेज़ इफ में आई एम नॉट मौजूद रॉन्ग हैं। तो एक पिंक फोर्स भी बनाई गई है मरीम नवाज की जानिब से, आई थिंक सो, पंजाब में।
जी, बिल्कुल, इस तरह की फ़ोर्सेस भी बनाई गई हैं जो कि आपको फ़ौरी तौर पे मदद फ़राहम कर रही हैं। देन अगेन यहाँ पर मैं एक बात पे ज़रूर ज़ोर डालना चाहूँगी कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इस बारे में बात नहीं होती है। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के सेशंस वहाँ पर हों और नौजवान बच्चियों को पता चले कि छोटी उम्र की शादियाँ जुर्म है, और जब बच्ची के साथ इस तरह की कोई चीज़ होने लगे तो वो खुद अपने लिए खड़ी हो जाए। वो खुद अपने लिए आवाज़ बढ़ाए कि ये कानूनी तौर पे गलत है। तो हम बच्चियों को ट्रेन पढ़ाई तो तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन इस मुआशरे के अंदर जो रियल चैलेंजेस हैं, हम बच्चियों को या हमारी आवाम को उसके लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। चाहे बेटी हो या बेटा हो, खुल के बात करें उनसे, उनको बताएं कि क्या क्या जराइम है, और इस तरह के जो मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें हम एज अ फर्द किस तरह से अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो जब हमारे पास तशद्दुद से पाक घराने बढ़ेंगे, तो तशद्दुद से पाक मुआशरे को भी हम बना सकेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया थैंक यू। मारवी हमें ज्वाइन करने के लिए।